Assalamu alaikum. I'm Dr. Morris Mukhtar, consultant implantologist and periodontologist at Steris and Dental Implantology Center. I think काफी दिन हो गए. We have been asked to have discussion on many topics, obviously by our patient. So today I decided to sit and discuss about few things. हमारे क्लिनिक के अंदर जैसे बहुत सारे लोग obviously मेरे patient उसके अलावा लोग जानते हैं कि मतलब we mostly been doing implant and surgeries and related procedures like 60% of our work which we do at our clinic. बहुत सारे patients ये पूछते हैं कि आप एक वीडियो क्यों नहीं बना देते for the post-operative instructions regarding implant dentistry you practice it a lot. I realize it's a good idea and obviously many people can get benefit out of it. Normally, what is an implant surgery? I think if you want to go into the details, you can go through my video on implant dentistry or implant surgery. You will have a good idea about what is an implant and what it can do in your life. Now we are talking about what should we do if you have gone through an implant surgery, because initial 48 hours are the most critical time which you have to have after an implant surgery, and that actually make or break the situation. The first and foremost thing which you need is आपने cold therapy करनी है. What is cold therapy? आपने शुरू के 48 घंटे कोई गर्म चीज नहीं खानी है, गर्म चीज नहीं पीनी है. Preferably you should have ideally ice cream, cold porridge, smoothies, cold food, whatever you feel like. And additional to it, you normally can have a cold ice pack or bunch of ice cubes, wrap it around with a cloth and put it in that specific area outside of your mouth, not from inside. The frequency of this procedure should be कि आपने 40 से 50 मिनट तक उस ठंडे कोल्ड पैक को या बर्फ के उस पैक को 40 मिनट्स तक उस जगह पे रखना है, सो दैट कि वहां पर आपके जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल रहे. अच्छा, ब्लीडिंग इससे कैसे कंट्रोल रहती है? एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन. वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपकी वेसल्स जो है, वेसल्स का मतलब आपकी रगें या शरियानें या जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं. कंस्ट्रिक्शन मीन्स कि वो श्रिंक करती. जब हम कोई सर्जरी करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रॉमेटिक प्रोसीजर. No matter how safely, how precisely we do, it's a trauma. It's a trauma to your body. So normally we cut many blood vessels, and those blood vessels, when we suture them back, they bleed. Not like a copious amount of bleeding, but they bleed like light oozing, you can say. कि हल्का हल्का सा खून रिसता रह रहा होता है. Even with a good surgical procedure in a perfect hand, हल्का हल्का blood 48 घंटे तक रिसता है. आपने सिर्फ ये करना है just to keep it controlled and to be in a soothing way. You just keep that cold pack outside your mouth so that the vasoconstrictions get encouraged. आपकी blood vessels जो हैं obviously healing के phase से गुजर रही होती हैं. healing के phase को obviously शुरू में 4 से 5 दिन लगते हैं, जो आपके डॉक्टर्स ने भी आपको बताया होगा कि हम मिनिमम 7 से 10 दिन या 12वें दिन के अंदर जाके आपके टाँके खोलते हैं if you have gone through a सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आपको सूचर्स लगाए जाते हैं. तो इनिशियली 48 आवर्स एज आई सेड कि आपने थूकना नहीं है, क्योंकि थूकने से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है मुंह के अंदर और उससे आपका क्लॉट डिसलॉज हो सकता है. सो यू शुड नॉट डू इट. सेकंड थिंग, यू शुड नॉट टेक एनी लिक्विड एंड गार्गल विथ. जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, लोगों को कुल्ली करके हलक साफ करने की आदत होती है. यू शुड नॉट डू इट. एक्चुअली आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं आप मुंह का मसा कर सकते हैं, और टू माय नॉलेज कुल्ली इज नॉट इन द फराइज ऑफ वुजू, सो यू कैन कंफर्टेबली डू दैट प्रोसीजर विदाउट एनी इशू. कुल्ली करने का नुकसान मैंने आपको बता दिया. यू शुड नॉट टेक एनी लिक्विड विद द स्ट्रॉ, बिकॉज व्हेन यू टेक एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ यू एक्चुअली जनरेट नेगेटिव प्रेशर इनसाइड योर माउथ दैट एडिशनली अप्लाई सम प्रेशर ऑन योर क्लॉट और आपको क्लॉट डिसलॉज हो जाता है. तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज हुई भी होती है बिकॉज इंजरी की वजह से, तो वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है. तीसरी चीज, आपने लिक्विड नहीं इस्तेमाल करना, आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है. एक चीज़ जो आपने एक्स्ट्रा करनी है, अगर इस तरफ सर्जरी हुई है तो आपने इस करवट से नहीं सोना है. इस करवट से नहीं सोने का मेन मकसद ये है कि आपकी सर्कुलेशन इस तरफ बढ़ी हुई होती है. ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपकी स्वेलिंग को भी इंक्रीज करती हैं. अगर आप उस करवट पे नहीं सोते हैं तो एक ब्लड फ्लो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से कम होता है, आपकी स्वेलिंग कंट्रोल रहती है. हमने 3 चीज़ें मोस्ट क्रिटिकल डिस्कस कर ली. चौथी चीज़, आपने कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना है. हार्ड फूड की जो ममानियत है वो तकरीबन 5 से 6 दिन या 7 दिन तक है, टिल द टाइम आपका जो जख्म है वो इनिशियल हीलिंग पे ना पहुंच जाए. इनिशियल हीलिंग का मतलब ये है कि एक पतली सी लेयर ऑफ एपिथेलियम हम उस स्किन को कहते हैं जिसको हम काटते हैं, वो उसके ऊपर ना आ जाए, जिसका कि आने का टाइम जो है 5 से 7 दिन है. इन एनी नॉर्मल इंडिविजुअल दैट एक्चुअली कवर्स द बोन with a thin layer of cells in 5 to 7 days. Let's repeat what we have to do. एक, आपने मुंह को ठंडा रखना है for 48 hours. मुंह के बाहर बर्फ के टकोर करने हैं. मुंह के अंदर आपने ठंडी ग़िज़ाएं खानी है और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में खानी है. उस करवट से नहीं सोना है.
ज़ोर से कुल्ली नहीं करनी है। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट एंड सॉरी टू से अल्कोहल अगर अल्लाह ना करे आप यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन आपके लिए अल्कोहल एंड सिगरेट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर सर्जरी फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। यस 4 वीक्स। 4 हफ्ते तक आपने ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है बिकॉज़ ये चीज़ें आपके ज़ख्म को, आपकी हीलिंग को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। तो अगर आप ये 4-5 चीज़ों को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो देयर इज़ नो चांस के योर थिंग्स विल गेट ऑन द रॉन्ग साइड, आपका ज़ख्म इन्फेक्ट कर जाए या खुदा न खास्ता आपको ब्लीडिंग हो। आपकी हीलिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्वेलिंग कंट्रोल रहेगी और आप पेन से भी बचे रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, जैसे एज वी डू एंड वी बिलीव दैट वी डू एब्सोल्युटली पेन फ्री प्रोसीजर्स इन आवर सर्जरीज, तो पेशेंट 2 से 3 दिन बाद भूल जाता है कि अच्छा मेरी कोई सर्जरी हुई, और जब वो ये भूल जाता है तो वो इंस्ट्रक्शंस भी भूल जाता है। तो मैंने इसलिए स्पेशली अपने ही खास पेशेंट्स के लिए वीडियो बनाई कि इवन विद अ पेनलेस सर्जरी your healing has to go with a normal flow, and these 5 things are mandatory in order to get the best healing out of it. I'm repeating at the end once again. First thing, cold therapy for 48 hours. Second thing, no hot flushes, no hot bath, no hot goggles, no liquid goggles as well for 48 hours. सख्त खाना आपने कुछ नहीं खाना है फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days। आप सॉफ्ट डाइट पे ही रहेंगे। उस करवट पे आपने नहीं सोना है जिस करवट पे आपकी सर्जरी हुई है। झुकना नहीं है, सजदा नहीं करना है। आप बैठ के आराम से नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने की कोई ममानियत नहीं है। वुज़ू आप कर सकते हैं, वुज़ू करने की कोई ममानियत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ज़्यादा बोलना नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी डू दी सर्जरीज आपके स्टिचेस लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन टाई हुई हुई होती है। व्हेन यू हैव अ मोर कन्वर्सेशन और मोर सोशल कॉन्टैक्ट आपकी स्वेलिंग बढ़ जाती है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सर्जरी करवाई और किसी को ना पता चले तो 4 से 5 दिन आप ये सारी एहतियात कर लीजिए। इंशाअल्लाह ना तकलीफ आपको होगी, ना पता किसी को चलेगा कि आप गॉन थ्रू अ सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।